JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Hello friends, in this video we will learn about the concept of joint Hindu family business, which is also known as HUF, means Hindu Undivided Family, in which meaning, characteristics, merits and demerits of joint Hindu family business are explained. Let's see all the topic in a deep through this video. Meaning of joint Hindu family business. According to Hindu law, a firm in which senior most member of the family manage the business and other family members are considered as its members, this type of firm is known as joint Hindu family business. हिंदू फैमिली लॉ के मुताबिक एक ऐसी फर्म जिसमें फैमिली का जो सीनियर मोस्ट एल्डर पर्सन होता है और सीनियर होता है वो उस बिजनेस को कर्ता बनेगा और उसे मैनेज करेगा और बाकी सब उस फैमिलियर्स उस बिजनेस के मेंबर्स कैलकुलेट किए जाएंगे, तो उसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं. लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मींस HUF, in which management, membership, liability, membership strength, duration, insolvency, existence are there. Let's see in a deep. Management. The most senior member of the family manage the business, that is known as कर्ता. Joint Hindu family business में जो भी senior most member family में होता है वो उस business को manage करता है और उसे हम कर्ता बोलते हैं. Membership. Its membership is by birth. The child becomes its member by birth. No contract is necessary for it, even if a minor becomes its member. Joint Hindu family business में जो भी child by born होता है तब से उसका member बन जाता है और उसके लिए कोई contract की requirement नहीं होती क्योंकि वो family business calculate किया जाता है. तो by birth से ही सभी child उसके members बन जाते हैं. Liability. Only कर्ता has unlimited liability and the members' liabilities are limited. In this business हम ये देख सकते हैं कि जो कर्ता है उसकी liabilities unlimited होती है, यानी यदि फर्म का डेट्स बढ़ जाता है उसकी एसेट से तो कर्ता को अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करके डेट्स को पे ऑफ करना है, लेकिन उसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है. मेंबरशिप स्ट्रेंथ. There is no limit to the number of members in this form as in a partnership. Membership is available up to 3 generations only. Joint Hindu family business में membership strength के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, कितनी भी मेंबर उसके मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यह मेंबरशिप सिर्फ 3 जनरेशन तक वैलिड रहेगी. Duration. Business is continued even after the death of कर्ता or any member after the death of कर्ता. Eldest member of the family become a कर्ता. It means that its durations is longer than partnership. हम देख सकते हैं कि यदि हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस में कोई भी कर्ता की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली उसके बाद वाला जो भी एल्डर पर्सन होता है वो कर्ता बन जाता है, यानी उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा है, पार्टनरशिप फॉर्म से भी कई बार ज्यादा होता है. Insolvency. In case of insolvency, the कर्ता and Hindu undivided family both are declared as an insolvent. जब भी ऐसे फर्म का डेट्स बढ़ जाता है उसकी एसेट से तो कर्ता और ये HUF फर्म मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये ऑटोमेटिकली इंसॉल्वेंट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन उसके मेंबर्स पर उसकी कोई इंपैक्ट नहीं होती. एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ फर्म्स कैन बी सीन इन इंडिया एंड नेपाल. ज्यादातर हम देख सकते हैं कि जॉइंट फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम नेपाल और इंडिया में देख सकते हैं. लेट्स सी सम मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इफेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, increased loyalty and cooperation. In which effective control. The form of business कर्ता has absolute decision making power. So, no more chance arises regarding conflicts between members and the prompt and flexible decision is taken.
हम देखते हैं कि पूरे के पूरे HUF का कंट्रोल कर्ता मेंटेन करता है, यानी एल्डर पर्सन जो इस फैमिली बिजनेस का एक करता है वो मैनेज करता है, यानी सभी डिसीजन वो लेते हैं, तो कोई भी मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई भी बवाल नहीं होती और अच्छे से फ्लेक्सिबल डिसीजन लिए जाते हैं। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजीशन, सो बिजनेस इज एग्जिस्टेड कंटिन्यूअस। हम देख सकते हैं कि कर्ता की डेथ हो जाने के बाद दूसरा जो एल्डेस्ट पर्सन होता है फैमिली का वो उसे हैंडल करता है, इसीलिए ये बिजनेस एग्जिस्टेंस चलता ही रहता है, यानी बंद नहीं हो जाता। लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड, सो रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। हम देख सकते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी फैमिली मेंबर्स है उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड रहती है, इसीलिए उसमें रिस्क एक लिमिटेड है और बहुत कम है। इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, this type of business run by family members, so loyalty maintained and cooperation between family members can be seen। हम देख सकते हैं कि ऐसे बिजनेस में हर एक फैमिली मेंबर्स लॉयल रहते हैं क्योंकि वो सभी फैमिली मेंबर ही होते हैं और सभी फैमिली मेंबर के बीच में अच्छा कोऑपरेशन बना रहता है। Those all are the merits of joint Hindu family business observed. Let's see some demerits or the limitations of joint Hindu family business, in which limited resources, unlimited liability of karta, dominance of karta, limited managerial skills have been observed. Let's see. Limited resources. The joint Hindu family business faces the problem of limited capital because it depends mainly on the ancestral property. Joint Hindu family business में रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं क्योंकि और कैपिटल भी लिमिटेड रहती है क्योंकि ये फैमिली बिजनेस अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है, यानी उससे जो वारिसदार में जो भी प्रॉपर्टी आती है उसके एंसेस्टर से पास वही प्रॉपर्टी पर डिपेंडेड रहते हैं, यानी वो लिमिटेड कैपिटल रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड मीन्स व्हेन द डेट्स ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस देन कर्ता पे ऑफ देयर डेट्स बाय सेलिंग ऑफ देयर पर्सनल असेट्स। हम देख सकते हैं कि कर्ता की लायबिलिटीज हिंदू जॉइंट फैमिली में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अनलिमिटेड है, मींस जब भी इस फर्म का डेट्स बढ़ जाता है तो कर्ता को अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करके डेट्स को पे करना होता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस व्हिच मे एट द टाइम नॉट बी एक्सेप्टेड to other members. This may cause the conflicts among them and may even lead to breakdown of the family unit. हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मैनेजमेंट करता ही करता है, लेकिन यदि मेंबर्स को ये सब पसंद नहीं आता और उसके जो डिसीजन लेने होते हैं वो प्रॉपरली लिए नहीं जाते तो कई बार इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं और सभी मेंबर्स उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो कई बार जो हिंदू फैमिली है यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो ब्रेक डाउन भी हो जाता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मैनेजरियल स्किल ऑफ कर्ता इज लिमिटेड। कर्ता's inability in management may result into poor profit or even losses for the organization. हम देख सकते हैं कि इस बिजनेस में कर्ता ही मेनली रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट करता है, इसीलिए इस फैमिली बिजनेस में यदि कर्ता प्रॉपर एबल नहीं रहता, अच्छा काम परफॉर्म नहीं करता और प्रॉपरली एफिशिएंसी नहीं शो करता तो उसकी वजह से बिजनेस में पुअर परफॉर्मेंस देखी जाती है, प्रॉफिट भी कम रहता है और कई बार लॉसेस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। Those all are the limitations have been observed in joint Hindu family business. Thanks for joining with us. Have a great day.